ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ بنگال اور آسام میں دوسرے مرحلے کے لیے ڈالے جا رہے ہیں ووٹ۔ ممتا بنرجی کے انتخابی حلقہ نندی گرام پر سب کی نظریں مرکوز۔ کورونا انسداد کے ٹیکہ کاری میں حکومت نے لائی توسیع۔ آج سے 45 سال کے افراد کو دیے جا رہے ہیں ڈوز۔ جھوٹ بول کر کانگریس عوام کو کر رہی ہے گمراہ، وزیر اعظم مودی کا الزام۔ آسام کے کاکرا جار میں انتخابی مہم سے کیا خطاب۔ چھوٹی بچت اسکیموں پر سود کی شرح جوں کی توں برقرار، کل جاری کیے گئے احکامات حکومت نے لیے واپس، نرملا سیتا رمن کی وضاحت۔ اور جنوبی ہند کے سپر اسٹار رجنی کانت کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ، مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کیا آج ان کے نام کا اعلان۔ ہیڈ لائنز کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل، لیکن اس سے قبل کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہم تمام کو چوکس رہنا چاہیے۔ ماسک کا استعمال کریں، دوسروں سے بات کرتے وقت 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں، اپنے ہاتھوں کو مسلسل دھوتے رہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق احتیاط سے ہی کورونا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں کووڈ کے انسداد کی ٹیکہ کاری مہم میں تیزی آئی ہے۔ آج سے 45 برس سے اوپر کے سبھی لوگوں کو کووڈ-19 کے انسداد کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے، چاہے انہیں پہلے سے کوئی بیماری ہو یا نہ ہو۔ جو لوگ 1 جنوری 1977 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ 45 سال اور اس سے زائد عمر کے تمام افراد کو ٹیکہ کاری کے بکنگ کے لیے کوون سسٹم پر اپنا نام اندراج کرنا چاہیے۔ ایسے افراد کے لیے آن سائٹ رجسٹریشن کی بھی اجازت ہوگی۔ کوئی بھی شناختی کارڈ لے کر آن سائٹ رجسٹریشن کے لیے سپہر 3 بجے کے بعد اپنے قریبی ٹیکہ کاری مرکز میں جا سکتے ہیں۔ پہلے سے کوون پر آن لائن اپائنٹمنٹ لینے والے افراد کے لیے پرائیویٹ یا سرکاری دواخانوں میں مزید کوئی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کے سی ای او ڈاکٹر آر ایس شرما نے مرکزی وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ٹیکہ کاری کے عمل کا جائزہ لیا۔ مغربی بنگال میں آج 30 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ بعض پولنگ بوتھ پر جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ کئی مقامات پر ٹی ایم سی اور بی جے پی کارکنوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ رائے دہندوں کی جانب سے بڑی تعداد میں ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ پولنگ کی شروعات سے ہی پولنگ بوتھ پر طویل قطاریں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پہلے 2 گھنٹوں میں ہی 16% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ واضح ہے کہ پہلے مرحلے میں 85% پولنگ ہوئی تھی۔ اس بار بھی اسی طرح پولنگ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے کی پولنگ میں آج سب کی نظریں نندی گرام حلقے پر مرکوز ہے۔ یہاں مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی مقابلہ کر رہی ہے، جن کے خلاف بی جے پی نے سریندر ادھیکاری کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ دونوں کے بیچ سخت مقابلہ دیکھا جا رہا ہے۔ بی جے پی تمام قداور قائدین اس حلقے میں ممتا کی شکست کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام پولنگ مراکز کے ارد گرد احتیاطی اقدامات کے طور پر دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے، جبکہ حساس انتخابی حلقوں میں اضافی سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ تقریباً 650 سیکیورٹی فورسز کمپنیوں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے۔ آسام میں آج صبح سے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ 27 مارچ کو پہلے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے گئے تھے۔ اب 39 اسمبلی حلقوں کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ 345 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ بی جے پی 34 سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے، جبکہ اس کے حلیف آسام گن پریشد 6 سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ یو پی پی ایل 3 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ 2 سیٹوں پر بی جے پی اور اے جی پی کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، جبکہ مزید 2 سیٹوں پر یو پی پی ایل اور بی جے پی کے درمیان دوستانہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ ادھر دوسری عظیم اتحاد سے کانگریس 28 سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ اے آئی یو ڈی ایف 7 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ پی پی ایف 4 سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ آسام کی نئی سیاسی پارٹی آسام نیشنل پریشد 19 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ یہاں پر برسر اقتدار این ڈی اے اور عظیم اتحاد کے بیچ سخت مقابلہ ہو رہا ہے۔ الیکشن انتظامیہ کی جانب سے کووڈ اصولوں کے مطابق ووٹنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ خاص کر رائے دہی کو پرامن بنانے کے لیے اضافی محفوظ مسلح دستوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آسام میں تمام لوگوں کی ہمہ جہت ترقی کے بشمول ریاست میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے این ڈی اے حکومت مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔
انہوں نے انتخابی مہم کے دوران آسام کے کاکرا جاڑ میں منعقدہ انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ مودی نے کہا کہ این ڈی اے حکومت سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے نعرے پر کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں رائے دہندوں نے بی جے پی کو آشیرواد دیا ہے، اس لیے آئندہ ہونے والے مرحلے میں بھی بی جے پی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ अवैध कब्जा गिरोह के हवाले किया, एनडीए ने उन्हें मुक्त किया। कांग्रेस ने बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़, मैदान सबको भड़काया, अंदर अंदर टकराव करवाया। एनडीए ने इनको विकास के सेतु से जोड़ा है, दिलों को दिलों से भी जोड़ा है। कांग्रेस ने इन क्षेत्रों को पानी, बिजली, गैस, सड़क ऐसी सुविधाओं के लिए तरसाया, सालों तक तरसाया। एनडीए हर सुविधा घर तक पहुंचाने के लिए आज जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस ने रियासत में दिन ब दिन कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से कोरोना केसों पर काबू पाने के लिए सख्त और मुअस्सिर इक़दामात भी किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत ए राजेंद्र ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामूलात के पेश नज़र महकमा सेहत के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास कर रहे हैं। कोठी के कमांड कंट्रोल रूम में ये इजलास हो रहा है। इस इजलास में कोविड की रोकथाम के लिए किए जा रहे इक़दामात पर अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में सरकारी दवाखानों में बेड्स की तादाद बढ़ाने के बारे में गौर व खौज किया गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 887 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि वायरस की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। साल 2019-20 के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा दीन दयाल उपाध्याय सहशक्तिकरण अवार्ड में तेलंगाना रियासत को 12 अवार्ड हासिल हुए हैं। इन अवार्ड हासिल करने वाले 12 ग्राम पंचायतों के अहदेदारों और ऑफिस अमले को केटीआर ने ट्वीट करते हुए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पले प्रगति प्रोग्राम केसीआर की सोच और फिक्र का मजहर है। पंचायत राज के वजीर इदियाकर राव और पंचायत राज के अहदेदारान देही तरक्यात के लिए चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर अमल करते हुए 100% नताइज हासिल कर रहे हैं। यही वजह है कि आज मरकज भी तेलंगाना की कारकर्दगी को कबूल करते हुए उसे अवार्ड से नवाज रही है। हुकूमत ने छोटी बचत स्कीमों पर शरह सूद में की गई तब्दीलियों से मुताल्लिक अहकामात को वापस ले लिया है। मरकजी वजीर फिनांस निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटी बचत स्कीमों पर सूद की शरह मार्च 2021 की तरह ही जारी रहेगी। मरकजी वजीर फिनांस निर्मला सीतारमण ने छोटी बचत स्कीमों में शरह सूद में की गई तब्दीलियों से मुताल्लिक अहकामात को वापस ले लिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत उन्हीं शरहों को जारी रखेगी जो 2020-21 की आखिरी सहमाही में मौजूद थी। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने आज दादा साहब फाल्के अवार्ड का ऐलान किया। इस बार जनूबी हिंद के मारूफ अदाकार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के तमाम फिल्मसाजों, अदाकारों, गुलकारों और मौसीकार को वक्तन फ़वक्तन दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। रवा साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड जनूबी हिंद के सुपर स्टार रजनीकांत को देने का ऐलान करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। वाज़ेह है कि साल 1969 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब तक 50 फिल्मी हस्तियों को यह अवार्ड दिया गया है। हिंदी से 32 शख्सियतों ने यह अवार्ड हासिल किया, जबकि दीगर ज़बानों की 18 शख्सियतों को अवार्ड दिया जा चुका है। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर उनके मद्दाहों में खुशी का माहौल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल फिल्मी दुनिया से जुड़ी मुख्तलिफ शख्सियतों ने सोशल मीडिया के जरिए रजनीकांत को मुबारकबाद पेश की। भारतीय सिनेमा 1913 में 108 साल पहले राजा हरिश्चंद्र बनाया था। तो उस राजा हरिश्चंद्र सिनेमा के बाद ये पहले चित्रपट महर्षि कहलाने लगे और दादा साहब फाल्के के मृत्यु के पश्चात ये अवार्ड उनके नाम से रखा गया और आज तक 50 बार अवार्ड दिया गया है, 50 साल दिया गया है। इस साल ये 51वां साल है और रजनीकांत के चयन पर निश्चित मुझे
देश भर में खुशी आएगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। रजनीकांत, जिसे दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, रजनीकांत गुज़िश्ता 5 दहाइयों से फिल्मी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। रजनीकांत को यह अवार्ड दादा साहब फाल्के की जूरी ने देने का फैसला किया है। 51वीं दादा साहब फाल्के अवार्ड के पैनल में आशा भोसले, मोहनलाल, बसवाजीत चटर्जी, शंकर महादेव और सुभाष घाई शामिल है। आइए देखते हैं रजनीकांत के ताल्लुक से मजीद तफसीलात। हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तिल, बड़ी बड़ी मूछें, लुंगी पहने हुए को अमरीश पुरी, ओए कबाली, ऐसे बुलाते ही सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है। ऐसा कबाली समझा है क्या? कबाली है ये। कंडक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले रजनीकांत ने फिल्मी दुनिया में काफ़ी शोहरत हासिल की है। आज उन्हें फिल्मी दुनिया के बावकार कौमी अवार्ड दादा साहब फाल्के के लिए मुंतखब कर लिया गया है। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी गायकवाड है। उनकी जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक मराठी खानदान में हुआ। रजनीकांत ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1975 में तमिल के डायरेक्टर के बालाचंद्र की हिदायत में बनी फिल्म अपूर्वा रागंगल से की। उनकी दूसरी फिल्म कन्नड़ा जबान की संगमा है, जबकि तीसरी फिल्म तेलुगु जबान की अंतोलिनी कथा है। इसी तरह उन्होंने शुरुआत में ही तीनों जबानों की फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। रजनीकांत अपने मुनफरिद लबो लहजे और डायलॉग के लिए शोहरत रखते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी के बशमूल दीगर जबानों में अदाकारी की है। 1978 में उन्होंने 20 से जायद फिल्मों में काम किया। इस वक्त उनकी फिल्म भैरवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हुई है। जब से ही इनके नाम के सामने सुपर स्टार का इजाफा हुआ है। उसके बाद वो मुसलसल फिल्मी दुनिया में तरक्की के मनाजिल तय करते रहे हैं। उन्हें फिल्मी सनत से जुड़े कई अवार्ड्स हासिल हो चुके हैं। फिल्म फेयर अवार्ड, बेहतरीन अदाकार अवार्ड के अलावा तमिलनाडु हुकूमत के कड़ी मामड़ी अवार्ड, चवालियार शिवाजी गणेश अवार्ड के बशमूल पद्म भूषण जैसे अवार्ड मिल चुके हैं। 3 से भले 2, 2 से भला 1। हम तीनों भाइयों में से एक ही काफी है तुम नामर्दों के लिए। बेटे लाल, दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्यम का कमाल। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। जनूबी कश्मीर में अमरनाथ की मुकद्दस गुफा के लिए सालाना यात्रा का रजिस्ट्रेशन आज शुरू हुआ है। 3880 मीटर ऊंची मुकद्दस गुफा के लिए 56 दिन की यात्रा 28 जून को पहलगाम और बालतल के दोहरे रास्तों से शुरू होगी और 22 अगस्त को इख्तिताम को पहुंचेगी। इस बात का इंकशाफ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के नितेश्वर कुमार ने किया। CEO उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन मुल्क भर के पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक की 446 यस बैंक और मखसूस बैंक शाखों के जरिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए तरीक़ेकार, दरख्वास्त फॉर्म और मुकम्मल पतों के साथ रियासत के एतबार से बैंक शाखों की फहरिस्त के बारे में तफसीलात बोर्ड की वेबसाइट पर दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सेहत सर्टिफिकेट जो कि रियासती सरकारों या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की इंतज़ामिया के ज़रिए नामज़द किए गए हैं, डॉक्टरों या तिब्बी इदारों के ज़रिए जारी किए गए हैं, रजिस्टर्ड बैंक ब्रांचों में CEO कबूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सर्टिफिकेट लाजमी है क्योंकि मुक़द्दस गुफा काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है और सफ़र काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यात्रा 2021 सिर्फ उन सेहत सर्टिफिकेट के लिए वैलिड होगी जो 15 मार्च के बाद जारी की गई है। जनाब कुमार ने कहा कि 13 साल से कम उम्र या 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और ख़वातीन जो 6 हफ्ते से ज़्यादा की हामिला हैं का कोविड-19 के ज़ाब्तों के मुताबिक इस साल की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से हम सुर्खियाँ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। बंगाल और आसाम में दूसरे मरहले के लिए डाले जा रहे हैं वोट। ममता बनर्जी के इंतखाबी हल्का नंदीग्राम पर सबकी नजरें मरकूज। कोरोना इंसदाद के टीकाकारी में हुकूमत ने लाई तोसी। आज से 45 साल के अफराद को दिए जा रहे हैं डोज। झूठ बोलकर कांग्रेस आवाम को कर रही है गुमराह। वज़ीर आज़म मोदी का इल्जाम। आसाम के काकराजार में इंतखाबी मुहिम से किया खिताब।
छोटी बचत स्कीमों पर सूद की शरह जो कि तू बरकरार, कल जारी किए गए अहकामात हुकूमत ने लिए वापस, निर्मला सीतारमण की वजाहत। और जनूबी हिंद के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड, मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने किया आज उनके नाम का ऐलान।